أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال عليه السلام: كان رسول الله دائم البشر وسهل الخلق لين الجانب. صلوات محمد علیہ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں ایک نئی بحث کا آغاز کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عنوان عرض کرنا ہے، چونکہ یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، تو ایام اضحیٰ گزر چکے ہیں اور ایام اضحیٰ کے موقع پر جو موضوعات تھے وہ بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے ربیع الاول کا۔ ربیع الاول یعنی اسلام کی پہلی بہار کا، اور اس بہار میں بہت ساری چیزیں واقع ہیں اور بہت ساری چیزیں اسلام آنے والی ہیں، اور جو سب سے اہم مناسبتیں ہیں وہ ہے پیغمبر کی ولادت کا سلسلہ۔ تو اسی حوالے سے ہماری گفتگو پیغمبر کے زاویے سے رہے گی، اور انشاءاللہ یہ ماہ شعبان تک اس پر ہماری گفتگو ہوتی رہے گی۔ اب آپ ذرا سا موضوع ملاحظہ فرمائیے کہ اخلاق پیغمبر اکرم، یہ عنوان ہے اور اسی پر ہماری گفتگو آج پہلے ہوگی۔ اب اگر پیغمبر کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہم کسی کی شناخت، کسی کی معرفت، کسی کا عرفان اور کسی کی پہچان اس کے گھر والوں کے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ آج آپ دیکھیے جو امت مسلمہ میں جو دھوکہ پایا گیا ہے اور جو دھوکہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ لوگوں نے اخلاق پیغمبر کو پیغمبر کے جو اہل بیت تھے ان سے نہیں لیا، کیونکہ قرآن نے پیغمبر کے اہل بیت کو الگ کیا ہے اور ازواج پیغمبر کو الگ کیا ہے، کیونکہ دلیل ہمارے پاس یہی ہے اور بعض کتب میں اور کتابوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جب آپ کی بہترین زوجہ جسے کہتے ہیں ام سلمہ، کیونکہ اگر یہ تاریخ میں واقعہ نہ ہوتا تو شاید اہل بیت میں بہت سارے لوگ مشکوک ہو جاتے کہ اہل بیت میں یعنی ازواج پیغمبر بھی کیا ہیں، شامل ہیں۔ لیکن کیا کہنا ام سلمہ کا کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی یا ہونے والی تھی اور چادر کسا میں، چادر یمانی میں پیغمبر آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے اجازت لے کر کے اس کے اندر داخل ہونا چاہا اور آپ نے اجازت مانگی۔ پیغمبر نے اجازت نہ دے کر کے ان سے کہا انک علی الخیر، یعنی بے شک آپ خیر پر ہیں، لیکن آپ چادر میں کسا یمانی میں داخل نہ ہوئی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر نے باؤنڈیشن کھینچ لیا کہ دیکھو تاکہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم یہ کہہ سکو کہ صاحب اہل بیت میں ازواج پیغمبر بھی شامل ہیں، کیونکہ اس وقت جناب ام سلمہ موجود تھی، اور ام سلمہ کا آنا اور پیغمبر کا انہیں روک دینا اور یہ کہنا انک علی الخیر کہ بے شک آپ خیر پر ہیں، یہ خود ایک اس بات کی سند ہے کہ پیغمبر نے ان کو اہل بیت سے کہ جو چادر تطہیر ہے، جو آیت تطہیر میں
शमूलियत है, पंज तन की इसमें आने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और उसके बाद यानी कुरान की वाज़ेह तरीन दलील यही है कि जब नसारे नजरान ने आपसे मुनाजरा करना चाहा, मुबाहिला करना चाहा, मुनाजरा कहते हैं आमने सामने को और मुबाहिला कहते हैं एक दूसरे के ऊपर लानत करने को, ताकि जो झूठा होगा, जो गलत होगा, उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब क्या होगा, नाजिल हो जाएगा। तो मुबाहिले के लिए जब वो किया तो आए कुरान नाजिल हुई, और आए कुरान यही थी कि तुम अपने नफ्सों को लाओ, तुम अपनी औरतों को लाओ, तुम अपने बेटों को लाओ इला आखिर। और उसके बाद यही कहा कि हम जो झूठा होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, लानत करेंगे। इसका मतलब ये था कि यानी दूसरी दलील दे रहा हूँ ताकि उम्मत मुस्लिमा को पैगंबर के इस अमल से कहीं पर शक व शुबा पैदा ना होने पाए। दूसरी दलील क्या थी कि अगर तुम समझते हो कि अहले बैत में अज़वाज पैगंबर शामिल थी, तो बताओ मुबाहले के मौके पर पैगंबर क्यों नहीं ज़ौजा को लेकर के साथ गए। दूसरी दलील दे रहा हूँ ताकि वो लोग जो अहले बैत और बैत में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि एक पैगंबर के अहले बैत हैं, समझ रहे हैं कि जो कुरान ने इनको अलग कर दिया, और एक अज़वाज पैगंबर है जिन्हें कुरान ने क्या किया, अलग कर दिया। अब जब अलग कर दिया ताकि मुसलमानों के लिए एक लम्हे फिक्रिया रहे, अब निसाअना का मतलब ये होता है कि तुम अपनी औरतों को लेकर के आओ। तो सिर्फ औरतों का मतलब अज़वाज पैगंबर में, ज़ौजे पैगंबर में शामिल होना नहीं है, बल्कि निसाअना से मुराद वो औरत कि जो अहले बैत के घराने की हो और अहले बैत में से हो और इनकी शायाने शान हो। अब आप ज़रा सा देख लीजिए, कहीं पर आप देखिए पैगंबर मुबाहले के मौके पर अली को ले गए, हसन और हुसैन को ले गए, फातिमा को ले गए, खुद गए, लेकिन ना अली के अलावा किसी दूसरे सहाबी को लेकर के गए, ना फातिमा के अलावा औरतों में किसी अज़वाज को लेकर के गए, और बेटों के को जो लेकर के गए वो हसन और हुसैन को बेटों की जगह पर लेकर के गए। यही वजह थी कि ये अबनाए पैगंबर कहलाए हैं, जबकि बेटी के बेटे हैं, लेकिन हकीकत में इन्हें क्या कहा गया, यानी ये पैगंबर के बेटे। समझ रहे, यानी ये चीज़ें बहुत आसानी से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ों को क्या किया जा सके, बयान किया जा सके, और जो उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जो एक कन्फ्यूज़न है उसको दूर किया जा सके। अब आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब जिस चीज़ को बयान करना चाहते हैं और आप बयान करते हैं, आप जानते क्या है, क्योंकि हमने शुरू में ये कहा कि जब तक कोई घर वाला किसी भी चीज़ को बयान नहीं करेगा, पैगंबर की बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं। अब ईमानदारी से बताइए, मौलाए कायनात पैगंबर के हमेशा साथ साथ रहे। अज़वाज पैगंबर अगर आई होंगी तो कब आई, एक ज़माना तो छूट गया ना उनका, और उनका जब ज़माना छूट गया तो अज़वाज पैगंबर घर के अंदर बाहर कौन जाएगा। ये मालूम दिया कि पैगंबर गए, जंग में गए, बाहर गए, तबलीग के लिए गए, अमल मारूफ करने के लिए गए, नहीं मुनकर करने के लिए गए। तो ये सब जो ज़ुमरे में बातें, चाहे अखलाकियात पे हो, चाहे हिदायत पे हो, चाहे सीरत पे हो, चाहे सुन्नत पे हो, चाहे फितरत के मौके की हो, जो भी आपने गुफ्तगू भी किसी समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम खाली अज़वाज पैगंबर से सारे किरदार पैगंबर को लेना चाहें तो ले नहीं सकते, क्योंकि अज़वाज पैगंबर का ज़माना जो शुरू होता है वो शुरू होता है पैगंबर की 25 साल ज़िंदगी बीत जाने के बाद शुरू होता है। और जब 25 साल की ज़िंदगी आपकी बीत जाती है तब जाकर के आपकी यानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू होती है। तो ये जो 25 साल का ज़माना है इसको कौन बयान करेगा। चूँकि आपने देखा होगा कि पैगंबर ने
दीन की शुरुआत भी नहीं की, पैगाम दीन को भी नहीं पहुंचाया, लेकिन आपने अपने किरदार के ज़रिए वो कुफ़ार की जो एक एक ऊँटों के ऊपर 40-40 साल तक लड़ा करते थे, वही पैगंबर को सादिक और अमीन कहने लगे थे या नहीं कहने लगे थे। यानी ये खुद अपनी जगह पर एक सोच है जिसे हमें कबूल करना चाहिए। अब यहीं पर रुक करके अगर मैं एक बात कहना चाहूँ अपने समाज वालों के लिए, तो ईमानदारी से आप बताइए कि आपका किरदार, हमारा किरदार, हम सब का किरदार कैसा झलकना चाहिए। खाली हम आजकल अगर आप देखिए तो हम खाली शेर हैं कि जिसके कागजी शेर में भी जान नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे इंसानों में भी जान नहीं है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे इंसानों में भी जान नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये हर खुशी और हर गमी का इजहार जो है वो सोशल मीडिया पे करते हैं। बकिया इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर नहीं होती हैं, मैदान अमल में नहीं होती हैं, खुद घर में नहीं होती हैं, कुछ समाज में नहीं होती हैं, और ना मस्जिदों में है, ना इमाम बारगाहों में है, ना कहीं पर। यानी ये बिल्कुल बेजान नज़र आते हैं। आप तलाश लीजिए ज़रा सा, आपको बहुत सारे अफराद ऐसे नज़र आ जाएंगे कि जिनका जो सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव हैं, पैगामात तो बहुत अच्छे अच्छे देंगे, लेकिन पैगामात दीवार पे भी तो अच्छे अच्छे लेकर रहते हैं। तो क्या वो दीवार चूमने के लायक हो गई, एहतराम करने के लायक हो गई? आप ज़रा सा आप जाइए ईमानदारी से अस्पतालों के पास से गुजरिए, देखिए जो मरीज़ के मुतालिक, बीमारी के मुतालिक जो कोटेशन है वो वहाँ पर क्या है, नोट है। अब ये कोटेशन नोट है तो क्या हमें डॉक्टर की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी? गौर कर रहे हैं ना। ऐसे ही आप ज़रा सा कचहरी और अदालत के पास जाइए तो वहाँ पर अदालत के मुतालिक, तराजू के मुतालिक, इंसाफ के मुतालिक, यानी बहुत सारे कोटेशन लिखे हुए होंगे दीवारों के ऊपर, और जहाँ पर फैसला हो रहा होगा वहाँ पर अदालतों में, कमरों में, वकील के कमरों में इधर उधर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ बातें लिखी होंगी। तो अब कुछ अच्छी बातें लिखी हुई, तो क्या आपको वकालत की ज़रूरत नहीं? क्या आपको अदालत की ज़रूरत नहीं? क्या आपको इंसाफ की ज़रूरत नहीं? गौर कर रहे हैं ना। कमाल की बात तो ये कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, आप ज़रा सा गौर कीजिए, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ गौर कीजिए कि जहाँ पर अदालत लगती है, इंसाफ की गुहार सुनी जाती है, इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है, वहीं पर बैठ कर के मुंशी हर चीज़ के नाम के ऊपर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ये जो लेता है, ये जज को नज़र नहीं आता। अब ईमानदारी बताइए, इंसाफ सबके लिए है, तराजू सबके लिए, ये क्या है? तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा नहीं पड़ा तो और क्या है? गौर कर रहे हैं ना। इस चीज़ की तरफ आप ज़रा सा गौर कीजिए, ये जो पैसा ले रहा है ये किस चीज़ का ले रहा है? तारीख देगा तो 50 रुपये देगा, तारीख आगे बढ़ाएगा तो 50 रुपये लेगा, और अगर कहीं पे आपकी गैर हाजिरी को हाजिर में तब्दील करना है तो वो उतना जोड़ डालेगा और उसको यस में तब्दील कर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो कोटेशन लिखी हुई है और जो यहाँ हो रहा है उसमें बहुत फर्क है या नहीं है? ऐसे ही है। ऐसे ही आप ज़रा सा गौर व फिक्र कीजिए और ज़रा सा देखिए, ऐसे ही बहुत सारे अफराद हमारे यहाँ क्या हैं, बातें सोशल मीडिया पे ऐसी कर देंगे कि इनसे मुत्तकी और परहेज़गार कोई नहीं है, और उसके बाद इनकी लाइफ उठा करके देखिए तो इससे ज़्यादा दागदार किसी की लाइफ नहीं होगी। तो ऐसे दो रुखी चेहरे वाले कि जिनके सोशल मीडिया का चेहरा अलग है, इनका हकीकी चेहरा अलग है, इनका बनावटी चेहरा अलग है, इनका दिखावे का चेहरा अलग है। तो अब ये ज़रा सा बता दीजिए कि जब दीवारों पर लिखे हुए कोटेशन हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं तो तुम्हारी सोशल मीडिया पे कही हुई बात कैसे फ़ायदा पहुंचाएगी? क्योंकि अच्छी समझ चाहती है। अब ईमानदारी बताइए,
यहीं पर पलटिए, पैगंबर की तरफ हम चलते हैं। पैगंबर ने ईमान नहीं फैलाया, पैगंबर ने मजहब की दावत नहीं दी, पैगंबर ने दीन की दावत नहीं दी, लेकिन ईमानदारी से बताइए दीन बाद में ऐलान किया है, ईमानदारी और सदाकत को पहले फैलाया है। ईमानदारी और सदाकत को पहले फैलाया है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप पैगंबर के उम्मती हैं? सबका दावा यही होगा साहब हम सब पैगंबर के उम्मती हैं। जो भी पैगंबर का मानने वाला है वो पैगंबर का क्या है? उम्मती है। अब ईमानदारी से आप बताइए, पैगंबर की ये दो सिफात हसना एक मुसलमान के अंदर इकट्ठा है, इकट्ठा नहीं है? दीन का मसला ही नहीं है। ये दो सिफात हसना जो पैगंबर के अंदर थे, सदाकत और ईमानदारी। सदाकत यानी सच्चाई, वाकईयत, हकीकत, हक बयानी, हक पर टिके रहना, हक पर कुर्बान हो जाना, बहुत सारे माने अगर आप करना चाहे तो बहुत सारे माने सदाकत पर निकल सकते हैं। हो सकता है किसी का नाम सदाकत हो, वो सबसे ज़्यादा झूठा हो। तो खाली नाम रख लेने से तो इंसान के ऊपर सिफात हसना उसके ऊपर आरिज तो हो नहीं पाएंगे कि मालूम एक इंसान सदाकत नाम रख ले और उसके बाद कहे साहब मैं सच्चा हूँ, हो सकता है वो सबसे ज़्यादा झूठा हो। समाज में जाकर देखिए कसमी खा करके अपना डुप्लीकेट माल सही बना कर बेच रहा, बिजनेस में धोखा दे रहा। समझ रहे हैं? अमानतदारी किसे कहते हैं? अमानतदारी यानी ये होना कि जो चीज़ जैसी थी उसको वैसे ही वापस करना, इसे क्या कहते हैं? अमानतदारी। आज हमारे यहाँ आप ज़रा सा देख लीजिए, हम इतने नाफहम और नासमझ हो चुके हैं, हमारी गैरत और हमीयत इतनी मुर्दा हो चुकी है कि अगर हम किसी मर्द मोमिन का हमारी ज़ात से नुकसान हो जाता है तो माफ़ी मांगना तो दूर की बात, हम सोचते तक नहीं हैं। हमें एहसास तक नहीं होता है कि हमने किसी का नुकसान पहुंचा दिया है। मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह का घर किसी का पर्सनल घर नहीं, अल्लाह का घर। अब अल्लाह के घर में अगर कोई चीज़ हमसे नुकसान हो जाती है, मसलन सजदगा गिरी टूट गई, एक मिसाल दे रहा हूँ, सजदगा गिरी टूट गई, अमानतदारी क्या है? तस्बीह हमसे टूट गई, अमानतदारी क्या है? फर्श हमसे गंदा हो गया, अमानतदारी क्या है? वज़ू कर रहे थे टोटी खराब हो गई, अमानतदारी क्या है? कूलिंग मशीन है हमसे बिगड़ गई, अमानतदारी क्या है? देखिए मैं क्वेश्चन मार्क वो कर रहा हूँ ताकि आपको अमानतदारी का सही मफ़हूम पहुँचा सकूँ। आज आप जाइए मस्जिद, जाइए इमाम बारगाह जाइए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चूमने के चक्कर में कभी कभी जरी को नुकसान पहुँचा देते हैं। किसी ने धक्का दिया, हमारे हाथ से जरी डैमेज हो गई, जिम्मेदार कौन? हमने कहा मौला आप ही समझिएगा, और हमने चूमा। कमेटी को बताना भी हमने मुनासिब नहीं समझा कि साहब ये चीज़ हमसे नुकसान हो गई है, जो भरपाई हो ये हम इसके देने के लिए तैयार हैं। अगर हम जाकर के ये कह दें जो नुकसान हुआ उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, इसे कहते हैं अमानतदारी। समझिएगा, इसे क्या कहते हैं? अमानतदारी। लेकिन आज आप देख लीजिए, हम नमाज पढ़ने के आते कितनों से सजदगाहें टूटती हैं और टूटी होंगी, मैं तो नहीं जानता, नाम मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने सजदगाह को बना करके रखा हो, या उसकी जगह पर टूटी हुई सजदगाह की जगह नई सजदगाह ला करके रख दी है कोई? ये अमानतदारी नहीं तो क्या? गौर कर रहे हैं ना? यही फर्ज कितों से गंदा हो गया। मान लिया हम बाहर से आए, पैर हमारा भीगा था और उसमें मिट्टी आई और हमने क्या किया, मदरसे के फर्श को उठाया, रगड़ दिया और अंदर आकर के साफ सुथरे चिकने मुकने आकर के बैठ गए। ईमानदारी बताइए, वो जब आप धुलने के अधिकार नहीं तो गंदा करने का अधिकार किसने?
अमानतदारी समझ रहे हैं? ये मैं मिसाल दूँ, छोटी छोटी बातें जो आपकी नज़रों के सामने हैं, यानी किसी पे कोई तंज नहीं, किसी पे कोई कमेंट नहीं। आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि मालूम लिया मौलाना रमजान के बाद कमेंट में लेकर के चले जाए, समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि ये हिदायत है। तो अब पैगंबर से हमें क्या चीज़ें सीखनी थी? दो चीज़ें। दीदारी से पहले पैगंबर ने हमें दो चीज़ें दी, एक सदाकत और एक अमानतदारी। अब ईमानदारी बताइए, अगर हमसे तस्वीर टूट गई और अगर हम उसको दोबारा ढूंढ करके तस्वीर को रखते, सही करके रखते, तो मान लीजिए वो तस्वीर भी सही रहेगी, दाने भी नहीं बिखरेंगे। हमसे सदका टूट गई, हम उस सदका को तोड़ करके दोबारा बना करके ला करके रख दे, या अगर वो नहीं कर सकते उसकी जगह पर दूसरी सदका ला करके रख दे, इसे क्या कहते हैं? अमानतदारी। लेकिन आप ज़रा सा गौर व फिक्र कीजिए, हर जगह की मस्जिदों में जा कर के देखिएगा कि अगर इंसान से नुकसान हो जाता है तो वो तो ये देखता है कौन सा अपने माल का था, और अगर कोई कमेटी वाला टोक भी दे तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हमारे बाप का है, हमने ला करके रखा है, टूट गया टूट गया। इसका मतलब क्या था? चोरी तो चोरी, मुहावरा इसे ही कहते हैं ना, चोरी तो चोरी और ऊपर से सीमा चोरी। ये यही पर है ना, ये कि हम अपनी गलती का एहसास करें, हम लड़ने मरने के क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, ये अखलाक पैगंबर में से नहीं है, समझ रहे ना? ये अखलाक पैगंबर में से नहीं है। अब आइए, अगर अखलाक पैगंबर को समझना है तो मैं हदीस का तर्जुमा करता हूँ, उसके बाद दूसरा खुतबा, क्योंकि आज वक्त जुमे का बहुत ज़्यादा घट चुका है, जुमा अपने वक्त के ऊपर क्या होना है। तो आइए देखें, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यही कहा, काना रसूलुल्लाह दाइमल बिश्र, यानी इमाम अली कहते हैं, मौला अली कहते हैं कि पैगंबर काना रसूलुल्लाह दाइमल बिश्र, यानी पैगंबर जो थे वो हंसमुख थे, यानी मुस्कुराते रहते, दाइमल बिश्र। आज हम में से देख लीजिए, हम जब मस्जिद और बारगाह आते हैं तो ऐसा मुँह बिगाड़ करके आते हैं जैसे मालूम दिया कि मार खा करके या मार करके इन्हें भेजा गया हो। जबकि पैगंबर के सिफात हसना क्या है? दाइमल बिश्र, यानी चेहरे के ऊपर क्या रखना? मुस्कान रखना, मुस्कुराहट रखना। मेरे अजीजों, ये मुस्कान और मुस्कुराहट क्या है? पैगंबर हमेशा मुस्कुराते थे। इससे क्या होता है? यही जब हम मुस्कुरा करके किसी से मिलते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, तो आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि मुस्कुरा करके मिलना हमारे दिलों से, हमारे कल्ब से, हमारे अंदर से कीना, हसद, जलन, नफरत, बुग़्ज़, कुदूरत, इन सारी चीज़ों को क्या कर देता है? दूर कर देता है। और हम जब मस्जिद इमाम बारगाह आते हैं तो हम मुस्कुरा करके बस इक्का दुक्का लोगों से मिलते हैं जो सोचते हैं ये मेरे अपने हम नवा हैं, जबकि मिलना हमें सबसे चाहिए। क्यों? इसलिए कि पैगंबर क्या कहते? काना रसूलुल्लाह दाइमल बिश्र, यानी रसूलुल्लाह क्या थे? हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और उसके बाद कहते हैं सहलल, यानी आपका अखलाक बहुत अच्छा था। आज हमारी बदअखलाकी कहाँ से नुमायाँ होती है? यहीं से नुमायाँ होती है कि अगर एक मौलवी मौलाना, एक इज़्ज़तदार इंसान जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो अगर दाखिल होता है तो हम अपनी जगह से उठना पसंद नहीं करते। ये क्या है? अखलाक पैगंबर को जा हम कहाँ? जब हम अपनी आदत को इतनी बिगाड़ चुके हैं तो फिर अगर हमारे ज़माने का इमाम या पैगंबर या हस्तियाँ आ जाएं तो हम कहेंगे साहब कोई बात नहीं, हम तो इत्यादि हैं। और उसके बाद अगर कोई टोक दे कहेंगे क्या बताएं, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, उठा नहीं जा रहा है। जबकि यही इंसान अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, देखिए कितनी तेज़ भागता है। अरे मैंने आंखों देखा, यहीं पर सफ़ेद कॉलोनी की बात कह रहा हूँ कि एक मैटर ऐसी तलाक का था, हम लोग बैठे मसला सुन रहे थे और माँ से चला नहीं जाता था, बिल्कुल माँ बहुत यही सफ़ेद कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, चला नहीं जाता था। इत्तेफाक से उसी वक्त भूकंप आ गया। ये जो नेपाल वाला वो नहीं था जिसमें झटके आ गए, भूकंप आया, जो चल नहीं पा रहा वो सबसे पहले नीचे। हम लोग सोच रहे गया कब, ये आ
खुद एक ही बात बता रहा हूँ, मतलब ये मत सोचिए मौलाना अंदर कोई अपनी तरफ से कोई बात कहते हैं। अब आप सोचिए वही इंसान जो बहाना कर रहे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे हिला नहीं जाता, मुझसे ये नहीं होता, कोई हादसा पेश आ जाए तो सबसे पहले ये दूर भागेगा, ये सामने की बात। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो अब ज़रा सा आप अंदाज़ा लगाइए कि हमसे उठा नहीं जा रहा है, हमसे बैठा नहीं जा रहा है। क्यों? इसलिए नहीं उठा बैठा जा रहा है क्योंकि हमारे दिलों में बुत आ चुके हैं, बुग़्ज़ व हसद के बुत आ चुके हैं। इसलिए हम अपने यहाँ मौलवी मौलाना का एहतराम नहीं करते, इसलिए हम इनके आदी हो गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं साहब नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ना अलग चीज़ है, एहतराम करना अलग चीज़ है, सीरत पैगम्बर को अपने अंदर उतार लेना अलग चीज़ है। आप समझ रहे हैं? और यहीं से बहुत सारी चीज़ें आप अंदाज़ा लगाइए। बहुत सारे इंसान हर जगह के पोस्टर और बैनर को आप ज़रा सा गौर कीजिए, और हमारे यहाँ जूही के बैनर को ज़रा सा गौर कीजिए। देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आगे एक टॉपिक के ऊपर तो बयान किए देता हूँ। हर जगह के लोग अपने मौलवी मौलाना की इज्जत करना जानते हैं, इसीलिए कोई भी प्रोग्राम पर अपने यहाँ के पेश इमाम जो वहाँ का इमाम रातिब हो उसका नाम ज़रूर देते हैं, ताकि हर जगह के लोगों को पता चल जाए कि हमारे यहाँ का पेश इमाम कौन है, किसकी सदारत में, किसकी सरपरस्ती में, किसी देख रेख में ये प्रोग्राम हो रहा है। और हमारे यहाँ का, चूँकि हमारे यहाँ किसी को सरपरस्त चाहिए नहीं, वो खुद एक सरपरस्त बना बैठा है। तो जब एक सरपरस्त खुद बना बैठा है तो फिर उसे ना इमाम की सरपरस्ती ज़रूरत है, ना किसी मौलवी मौलाना की, ना नायब इमाम की। सलात पढ़ दी, समझ रहे? ये नहीं है, ये आप गौर कीजिएगा कितना फ़र्क है, कितने हम गुस्ताख हैं। उसके बाद कहेंगे साहब हम अखलाक के पैगम्बर पे चल रहे हैं, हम सदाकत पे चल रहे हैं, हम ईमानदारी पे चल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो मौला ने कहा, लय्यनिल जानिब, मौला ने क्या कहा, यानी जो पैगंबर थे ये नर्म आदत वाले थे, यानी इनकी आदत बहुत नर्म थी, नर्म मिजाज। आज हम क्या होते हैं, तेज मिजाज हैं। लय्यिन मिजाज के बजाय हम क्या हैं, तेज में एकदम, कि बस तुम कहो और हम लड़ने के लिए तैयार, तुम हमें छेड़ो तो हम तुम्हें मारने के लिए तैयार। क्या मतलब अल्लाह के बंदों, अखलाक पैगंबर कहाँ गया, किरदार पैगंबर कहाँ गया, किरदार अली कहाँ गया, किरदार हसन और हुसैन कहाँ गया। और उसके बाद हम ये कहते हैं साहब हम तो इमाम के चाहने वाले हैं। समझना बहुत फ़र्क है। आप जा कर के अपना तज्जिया कीजिए, अभी जब तक हयात बाकी है, अपने अंदर अखलाक पैगंबर को बचाइए। इसलिए कि 2 महीना 8 दिन हमने हुसैन का गम मनाया, 9वें दिन हमने सलीक़ा खो दिया है, तरीक़ा खो दिया है। और कितने ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि 9वें दिन हुआ क्या है। बहरहाल ये अपनी जगह पर है। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अली अलैहिस्सलाम, अस्हाबुल महदी शबाबुन ला कहूला फ़ीहिम सबात रहमत। आज के दूसरे खुतबे में एक नई बहस और एक नई गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है हिदायत की, ताकि हमें कोई होका देता रहे। और हदीस मासूमीन में यही है कि हमारा भाई वो है, समझिएगा, जो हमको हमारे अयूब की तरफ निशानदेही करता रहे, वो मेरा भाई है। तो अब आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि भाई किसको कहा गया,
جو ہمارے عیوب کی طرف ہماری نشاندہی کرے. اور ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو مولوی مولانا کی، عالم کی، کہ وہ تبلیغ دین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی انجام دے. یہ ہے ذمہ داری. اور ادھر پیغمبر کی حدیث اور آل پیغمبر کی حدیث نے جس چیز کو بیان کیا وہ یہی کہ جو مجھ کو میرے عیوب کی طرف نشاندہی کرے وہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے تاکہ تیسری بات آپ کے ذہن میں آئے اور آپ کی سمجھ میں آ سکے. آج آپ بتائیے کون ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ کاش ہم امام زمانہ علیہ السلام کے شامل ہو سکے. کیونکہ امام کی رکاب میں شامل ہونا ایک تمنا ہے، شامل ہو سکنا ایک ذمہ داری ہے، اور شامل ہو پانا ایک شرف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تمنا تو سب کے اندر ہے کہ ہم جو ہیں وہ کیا کر دیں، کاش ہم رقاب امام مہدی میں ہوں. آج بہت سارے انسان یہ کہتے ہیں کیا رقاب امام مہدی میں عورتیں بھی ہوں گی؟ یقیناً بالکل ہوں گی. یعنی 13 عورتیں جو روایتوں نے وہ کر رکھا ہے، 13 عورتیں ہوں گی جن کو پرستار کہا گیا ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا نرسیں، وہ نرسوں کی صورت میں تیمارداری کرنے کے لیے 13 عورتیں روایتوں میں پائی جاتی ہیں. تو یہ بہت سارے افراد اپنی کم علمی کی بنیاد پر کبھی کبھی یہی کہہ دیتے ہیں ذمہ دار لوگ امام کے رقاب میں عورتیں کہاں سے آ رہی ہیں. سمجھ رہے نہیں، عورتیں بھی ہیں تاکہ عورتیں اپنے کو الگ نہ سمجھیں گی صاحب ہم جو ہیں آ ہی نہیں سکتے. انہیں بھی کوشش برابر کی کرنی ہے کہ ہمیں آنا ہے، ہمیں بھی شامل ہونا ہے، ہمیں بھی اس میں شرکت کرنی ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. کس چیز کے لیے؟ اصحاب امام مہدی میں، صحابیہ امام مہدی میں کیا ہونے کے لیے؟ شامل ہونے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. اب یہ جو دوسرا خطبہ ہے خصوصیات اصحاب امام مہدی علیہ السلام، یہ عنوان ذہن رکھیے گا. خصوصیات کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو کوالٹی پائی جاتی ہے انسان کے اندر. ایک کوالٹی ہوتی ہے نا، امتیازات ہوتے ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، انسان کے اپنے الگ پہلو ہوتے ہیں جو شرف اور عزت کا باعث ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہی کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ پیدا نہیں ہو سکتی. آپ ایمانداری بتائیے، میں بار بار کہتا ہوں چونکہ میں مثال دیتا ہوں تو مثال کے اوپر کبھی کبھی لوگ برا مان جاتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، مثال ہے، مثال نہیں دوں گا تو بات نہیں سمجھے. علیہ السلام، مثال نہیں دوں گا تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی، اور جب بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے خطبہ اپنی جگہ پر وہ میسج نہیں پہنچا سکتا جو مولانا نامدار یا معصومین کے جو کلمات ہیں جن کو زبانی طور پر، مجموعی طور پر، اجمالی طور پر پہنچانے کی کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ ذرا تو بتائیے، اصحاب امام مہدی، اپنے اصحاب کربلا کو دیکھا، 72 کو دیکھا، سنا، دیکھا نہیں سنا، دیکھا نہیں لیکن سنتے آ رہے ہیں. خصوصیات بھی، امتیازات بھی، شرف بھی، رتبہ بھی، مرتبہ بھی، ان کا مقام بھی، اور ان کے نام پر روتے ہوئے آ رہے ہیں. صحیح ہے؟ گریہ و ماتم کرتے ہوئے، عزاداری کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو ان 72 میں سے کوئی ایک انسان ایسا ہو جو یہ کہہ لے کہ صاحب ان 72 میں سے فلاں کا کردار میرے کردار سے میچ کر رہا ہے، یا فلاں کے کردار سے میرا کردار میچ کر رہا ہے؟ ایمانداری بتائیے.
کیوں کوئی نہیں تیار ہوتا اس طریقے سے اپنے آپ کو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں شامل کرنے کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو امام ہمارا وہاں پر تھا اور اس نے جو آواز دی تھی اس آواز پر لبیک کہنے والے ہم لوگ تو ہیں، لیکن لبیک کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ لبیک کا مطلب یہ ہو گیا کہ یا حسین، میری جان، میری مال، میری عزت، میری آبرو، میری ناموس، میرا سرمایہ، میری حیات، میری ممات، میرا جینا، میرا مرنا، میرا کل، میری ساری پونجی سب آپ پر قربان۔ اسے کہتے ہیں لبیک یا حسین۔ سمجھے؟ میرا سب کچھ آپ کے اوپر کیا ہے؟ قربان ہے۔ آج ایمانداری بتائیے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سب لٹانے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہہ دے کہ میں سب لٹا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نام حسین پر چندہ لینے کے لیے آتے ہیں تو میری جیب سے نکلتا کتنا ہے، اس کے بعد ہمارا دعویٰ کتنا ہے کل کا، میری جان، میرا مال، میرا عزت، میری آبرو، میں خود، میرے ناموس، میرا سرمایہ سب حسین پر قربان۔ اور جب نام حسین پر مانگا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سمجھ رہے نا؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہم سب کے سامنے، اس میں آپ نہیں ہیں خالی، ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم کتنا وہ کرتے ہیں اس کے اندر۔ اور آج ہمارے یہاں سماج میں تو ایک چیز اور بھی بہت اچھی ہوتی ہے کہ کسی کی محنت کے اوپر پانی پھیرنا ہو تو ایک جملہ ہم اور کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو کوئی اپنی طرف سے کوئی پروگرام تھوڑی نہ ہوتا ہے، وہ تو ایران سے پیسہ آتا ہوگا اس لیے ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات تو پڑھ لی کم ہے نا؟ یعنی ایک تو ہم شامل بھی نہیں، دوسرے اوپر سے الزام بھی لگائے بیٹھے ہیں۔ الزام لگانے کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ الزام لگایا، امام کی عدالت میں پہنچو گے، ثابت کرو کہاں سے آیا ہے، اور اگر ثابت نہیں کر پائے تو ایک الزام کے بدلے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور آج ہم کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جانے کے، بغیر کسی پوچھے کے، بغیر کسی اس کے، یہ کہہ دیتے فلاں جگہ سے پیسہ آ رہا ہے۔ میرے عزیز، فلاں جگہ کہہ دینا بہت آسان ہے۔ آپ جس جگہ پہ رہتے ہو نا، جو پیسہ وہاں سے نہ نکل پائے دوسری جگہ سے پیسہ نہیں نکلتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے اور ہاں، جو بے ایمان قسم کے ہوں گے، جھوٹ، فریبی، مکاری کرنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ تو جیسے شیطان اللہ کا نام لے کر کے جناب آدم کو بہکا سکتا ہے، تو آج کل کے دور کے انسان دوسروں کو کیسے بہکا سکتے ہیں؟ بہت ایزی ہے بہکانا۔ تو بات ایمانداروں کی ہو رہی، مکاروں کی نہیں ہو رہی۔ مکار کسی بھی طریقے سے مکاری کر کے وہ بہکا تو سکتا ہے، لیکن یہ سوچئے کہ حساب کتاب وہ بھی نہیں دے گا، اسے بھی دینا پڑے گا جس نام سے اس نے فراڈ کیا ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب امام مہدی کی خصوصیات ذرا سا آپ جانیے۔ آج ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں میرا سب کچھ لبیک کہہ دیا اور ہم نے سمجھ لیا بس امام حسین علیہ السلام کا اگر 73واں ساتھی کوئی ہوگا تو میں، 74واں ساتھی تو فلاں، 75واں ساتھی تو یہ، 76واں ساتھی تو وہ، اس کے بعد 77واں ساتھی وہ میرے رشتے دار، 78واں ساتھی وہ فلاں ممبئی کا رہنے والا۔ پھر ہم نے پوری فہرست بنا لی۔ امام حسین علیہ السلام کی فہرست میں دیکھتے محمد حنفیہ رہ گئے، عبداللہ رہ۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ کی فہرست بن جانا الگ ہے اور امام کی فہرست میں نام آ جانا یہ الگ ہے۔ اس کا مطلب نام نہیں چاہیے، کردار چاہیے۔ کردار بناؤ تاکہ وہاں تک اصحاب امام مہدی میں شامل ہونے کے لیے تیار رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تم کردار نہیں بناؤ گے اصحاب امام مہدی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ بالکل ویسے ہی جیسے 9 ربیع الاول کل منائیے نا، کل انہوں نے سب سے زیادہ 9 ربیع الاول کی خوشیاں منائی ہیں جنہوں نے 2 مہینہ 8 دن مقصد حسین کو سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ 9 ربیع الاول
की खुशियाँ मनाई हैं, जिन्होंने 2 महीना 8 दिन मकसद हुसैन को समझा ही नहीं है। मेरे अजीज़ों, कुछ चीज़ें होती बदनाम, समझ रहे, ये मैं मैसेज दे रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती बदनाम, कुछ चीज़ें होती हकीकत। आज हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद 9 रबीउल अव्वल के नाम के ऊपर कुछ चीज़ें उड़ाई गई हैं और कुछ चीज़ें पाई गई हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, चूँकि देखिए रिवायतों में पा जाना कमाल नहीं है, जब तहकीक कीजिए रिवायत का मोतबर गैर मोतबर होना ये कमाल है। मैं इसलिए ये बात वो किए दे रहा हूँ ताकि कोई साहब मेरे ऊपर ला करके लांछन ना लगा दें कि साहब ये मौलाना रमदार नए आ गए हैं, क्योंकि रिवायतों में पाया जाना एक अलग चीज़ है और जब तहकीक करके रावियों का पता लगाएंगे तो वो चीज़ अलग है। इसी तरीके से आप समझिए ये जो 9 रबीउल अव्वल है, 9 रबीउल अव्वल जो रिवायत इसहाक़ से आई है वो रिवायत अलग है, और जो रिवायत रुफ़े अल क़लम कि अल्लाह ने इस दिन फरिश्तों को रोक दिया कि साहब इनका कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, तो इस रिवायत की जब तहकीक की गई तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि ऐसी रिवायतें मोतबर नहीं मानी गई हैं, क्योंकि रुफ़े अल क़लम अगर कर दिया जाएगा तो नतीजा क्या हो जाएगा, नतीजा ये हो जाएगा कि ये ईद ज़हरा, जिसे यौमुल फ़रहा कहा जाता है अरबी के अल्फाज को, और उर्दू में कहा जाता है ईद ज़हरा। ईद ज़हरा दुश्मन दीन हलाक हुआ है, लेकिन आप जानते कौन हलाक हुआ है? उमर इब्ने सआद आज के दिन मारा गया है। उमर इब्ने सआद 9 रबीउल अव्वल को इसकी हलाकत का दिन है। उमर सआद कौन था? करबला में जो खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था और जिसने तीर बारानी भी की, जिसने जुल्म किया, जिसको जनाब ज़ैनब ने यही कहा था कि मेरा माजाया ज़िबा हो रहा है, तू खड़ा तमाशा दे, ये वो उमर सआद है जो 9 रबीउल अव्वल को क्या हुआ है, हलाक हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी रिवायतें हैं, खूली का सर, हुरमला का सर, तुफ़ैल का सर, या और भी दुश्मनान दीन का सर चौथे इमाम की खिदमत में पहुंचा है और हमारे इमाम मुस्कुराए हैं। ये सब आप बताइए ताकि जो दुश्मन के अंदर, जो लोगों के अंदर, जो आज मुसलमानों के अंदर इख्तलाफात डालना चाहते हैं, उन इख्तलाफात को क्या किया जाए, दूर किया जाए, गलत फहमियों को दूर किया जाए, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मदिया में से, हमारा मैसेज क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, समझ रहे हैं, ताकि हम गलत फहमी के शिकार ना हो। तब इन्हें बताया जाए कि आओ पैगंबर की बेटी की खुशी में हम सब शामिल हों। जब हकीकत से पर्दा उठा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है खुशियों में कमी नहीं होगी, 4 चांद लग जाएगा। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। बस आखिरी बात, चूंकि 12:56 के अंदर जो है नमाज जुमा को क्या होना है, ख़त्म होना है, सवाल का वक्त यही था। तो अब आप देखिए कि जो असहाब इमाम मेहदी में होंगे वो सब के सब जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला फातिमा मोहम्मद वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद अकबर हुसैन मोहम्मद इब्न अली मोहम्मद और मूसा इब्न जाफर वाले मूसा मोहम्मद इब्न अली वाले मोहम्मद और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना जमान मानी आसार बेदवा तो यार वाहद बयान शिरक नफा परवरदिगार हमारे इस इबादत कबूल फरमा ले। परवरदिगार हम इस मकसद में इस मिशन में लगे कामयाबी अता फरमा देना। परवरदिगार हम सबको उम्मत मोहम्मदिया उम्मत वहदा में फराज दे देना। परवरदिगार हमारे इमाम के फरमा और हम सबको उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला